Hello students, welcome once again. Session number 33, unit number 12, aldehydes, ketones and carboxylic acids. As we know that at presently we are situated at a NCERT exercise, and today we starts from our exercise 12.14, right? So what they given in 12.14, how will you prepare the following compounds from benzene? It means that we have to prepare all the compounds from benzene, and most important conditions they given, you may use any inorganic reagent and any organic reagent having not more than one carbon atom. Means we have to use only up to one carbon atom of either organic or inorganic species or reagent. Okay, now we start. I want to prepare methyl benzoate. The meaning of methyl benzoate, it means that our compound, last compound or our end product is a esteric compound. So we know that to prepare esterification, so we need a carboxylic acid. So first from benzene to benzoic acid is our journey. There are two ways, benzene to benzoic acid. If we particularly, there are two ways to form a benzoic acid from benzene. But here in this book, our book suggests the first way is the benzene bromination of the benzene. So Br2 FeBr3. So this Br2 FeBr3. So our particularly point is, this is nothing but it's a one type of a bromination. This is nothing but it's a one type of bromination. So we know that there is a HBr is released and we get the product is bromobenzene. Now this bromobenzene reacts with magnesium and dry ether, right? We know that this is Grignard reaction. This is Grignard reactions, and we get a product is phenyl magnesium bromide. Okay, after the preparations of phenyl magnesium bromide, first we have to with a carbon dioxide and we have to add a dry ice or solid form of carbon dioxide. Okay, so when we have to add such a type of compound, so it's an intermediate addition product and we get a benzoic acid, because there is a second step is a hydrolysis, right? So this is hydrolysis and we get a benzoic acid as a product. And after the benzoic acid, now I want to prepare a methyl benzoate. So methyl benzoate is a ester. So there is you have to add methanol in presence of concentrated H2SO4, right? So excess of methanol is used. Here in this case, we have to use a excess methanol, and some temperature is required to get a product is methyl benzoate. And there is one more way. Okay, आपको मालूम है दूसरा रास्ता कौन सा होगा यहाँ पे जाने का बेंजोइक एसिड से? वो बढ़िया रास्ता है. हम बेंजीन टू फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन से हम कहाँ चले जाएंगे? टोल्यूइन में, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 CH3Cl 80 डिग्री. और फिर टोल्यूइन से हम डायरेक्ट बेंजोइक एसिड में जा सकते हैं, ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ KMnO4KOH. ठीक है, तो हम बेंजीन टू टोलिन की तरफ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं. लेकिन अभी हमारी जो रेफरेंस बुक यहाँ पे जो दिखा रही है, उसने जो कॉन्सेप्ट समझाया वे मैंने दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें यही कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा. ठीक है, फाइन. अभी दूसरा मुझे यहाँ पे दिया गया है और वो है मुझे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड. क्या दिया हुआ है? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड. इसका मतलब ये है कि बेंजोइक एसिड तो मुझे बनाना ही है और उसके नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशंस में डालना है. सो फर्स्ट आई वांट टू प्रिपेयर अ बेंजोइक एसिड. तो जो ऊपर आपको यहाँ पे दिया गया था एज इन वन, राइट, यहाँ पे जो दिया हुआ, तो यही स्टेप यहाँ पे उसने लगाए हुए हैं. ठीक है, तो ये तो हम बेंजोइक एसिड की तरफ चले जाएंगे. फिर बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कि यहाँ पे जो थोड़ा मिसिंग है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और नाइट्रेशन हम करना चाहेंगे तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इसलिए मिल रहा है बिकॉज द इनकमिंग NO2+ इज अ इलेक्ट्रोफाइल, and this electrophile is enter into the meta positions because in benzoic acid our COOH group is a meta directing group. So, okay, so due to meta directing group, this nitro group is enter into the meta positions.
नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिखाया गया है और वो है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड। अभी पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड में हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड का कॉन्सेप्ट है। देखिए मुझे COOH पैरा पोजीशन में लेना है, राइट, और अदरवाइज नाइट्रो भी पैरा पोजीशन में लेना है। यानी ये कुछ ऐसा हो रहा है, नाइट्रो और बेंजोइक एसिड दोनों ग्रुप मेटा डिरेक्टिंग है, तो मुझे कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया था, बेंजीन टू हम टोल्यूइन चले जा रहे हैं with the help of CH3Cl and anhydrous AlCl3. We know that it's called the Friedel-Crafts alkylation reactions. I think so. 80 degree centigrade temperature is required and there is a removal of hydrochloric acid, and first we get a product is methyl benzene or toluene. Now nitration of this toluene in presence of concentrated HNO3 and H2SO4 gives a paranitro-toluene. But mind well, this is solid in nature, and and orthonitro-toluene is liquid in nature. This is liquid in nature. And para is a major due to the less steric hindrance effect, and in the case of ortho it's having a very crowding effect at the ortho positions. So we get, now we separated by the filtration, so we get a para-nitrotoluene. Okay, so this product is para-nitrotoluene, and now this para-nitrotoluene is oxidized with the help of strong oxidizing agent like KMnO4-KOH, but it's an alkaline media, and then we have to use the acidic media, so we get a product is para-nitrobenzoic acid. So this is all about the para-nitrobenzoic acid. नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है और वो है फिनाइल एसिटिक एसिड। क्या दिया हुआ है हमें? फिनाइल एसिटिक एसिड। ये बहुत बढ़िया है। फिनाइल एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए, यहाँ पे फिनाइल एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले मुझे क्या करना, कितने कार्बन है इसमें? 2, यानी मुझे 2 कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट बेंजीन टू टोल्यूइन की हमारी जो जर्नी है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे बेंजीन है CH3Cl anhydrous AlCl3, it's a Friedel-Crafts alkylation reactions, and we know that it can be carried out at 80 degree centigrade temperature, and there is a removal of HCl, and first we get a toluene। अभी टोल्यूइन में हम खड़े होकर 2 बार सोच सकते हैं। हमें मिथाइल ग्रुप की कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं करना है कुछ, यानी ये जो मिथाइल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है उसका सब्स्टिट्यूशंस करना पड़ेगा और फ्री रेडिकल मुझे करना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 है साइड में, इसको क्या बोल रहा हूं, साइड चेन है। साइड चेन ब्रोमिनेशन करना है, रिंग पे ब्रोमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। तो साइड चेन के लिए मेरे पास तो ब्रोमिनेशन है, ब्रोमीन है, और उसको हम लाइट सनलाइट की वजह से उसका ब्रोमीन फ्री रेडिकल वहां पे अटैक करेगा। और दूसरा ये बेस्ट है, इसको हम एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड भी बोल रहे हैं। ये एलाइलिक ग्रुप के लिए बहुत बढ़िया रिएजेंट है। आपने देखा नहीं होगा लेकिन JEE नीट में कई बार पूछा जा सकता है ये NBS, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस NBS। तो ये एलाइलिक हमें जो ग्रुप यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे हम बेंजाइल ब्रोमाइड दिखा सकते हैं। फिर हम उसका क्या करेंगे, ब्रोमीन निकाल के साइनेट, यानी हमने यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा दिया, अभी एक और कार्बन यहाँ पे ब्रोमीन निकाल के साइनेशन, ये प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हमें मालूम है ना, ये एसएन रिएक्शंस है ना, राइट, इट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस है। तो बेंजाइल साइनेट बन जाएगा और फिर साइनेट का हम उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मुझे फिनाइल एसिटिक एसिड कुछ मिल सकता है। देखिए मैं अभी आपको गाइडलाइन दे रहा हूं, आपको क्या करना है, ये लेक्चर्स पूरी तरह से पढ़ना है, समझना है, और फिर अपनी तरह से आप ये कीजिए, ताकि कोई दिक्कत आए तो होनी ही चाहिए, दिक्कत आनी ही चाहिए, तो ही आपको पता चलेगा कि मेरी क्वेरी कहाँ पे है, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूं। तो आप उसको मिनिमाइज कर दीजिए, आप एक बार अपनी तरह से करेंगे, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया है पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। क्या दिया हुआ है, पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। देखिए यहाँ पे पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड मुझे बनाने के लिए मैंने जो अभी ये जो प्रोसेस की थी, फर्स्ट वन बेंजीन, यहाँ से मैंने टोलिन बनाया था, फिर ऑर्थोनाइट्रो पैरा, यहाँ तक का तो जो मेरा राउट है ना वो सेम ही है, ठीक है। तो फिर मैंने सेपरेटेड करके मैंने पैरानाइट्रोटोलिन पे यहाँ पे हूँ चला गया हूँ। अभी ये जो पैरानाइट्रोटोलिन है, देखिए तो यहाँ पे इसने बताया ही है, लेकिन ये थोड़ी गलती कर दी है उसने, 2 बार एक ने एक बात की है, यानी ये जो है मुझे यहाँ पे ये मुझे दिखाना नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। सो ये दिस इज पैरानाइट्रोटोलुइन, दिस इज पैरानाइट्रोटोलुइन,
एंड नाउ आई हैव टू ऑक्सीडाइज दिस मिथाइल इनटू एल्डिहाइड, बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो CrO2 Cl2 से हम हो सकता है। दूसरा मेरे पास एक कंपाउंड था यार, आपको मालूम है ना क्या करना पड़ेगा, CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड से भी मैं कर सकता हूँ, CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड से भी मैं कर सकता हूँ, और मुझे पेरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मुझे मिल गया है। तो ये जो क्वेश्चंस था मेरा जो 12.14 वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। कई अच्छे जो पेपर सेटर होते हैं ऑर्गेनिक के, तो ये कन्वर्जन्स टाइप के क्वेश्चंस वो ज्यादा अपनी एग्जामिनेशंस में भी पूछ रहे हैं। JEE नेट में क्या होगा, ये दिखाएंगे और यहाँ पे A रख देंगे, यहाँ पे B रख देंगे, यहाँ पे C, और ये ABC रिस्पेक्टिवली क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे मेरा जो लगाया हुआ है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इज नॉट मोर देन 2 स्टेप, यानी हमें 2 स्टेप के अंदर ही अपनी बात रखनी है, 2 से ज्यादा स्टेप हमें यहाँ पे दिखाने नहीं है। तो हमें फर्स्ट दिया गया है वो है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। अब देखिए अच्छी तरह से देखिए, प्रोपेनॉन में से मुझे प्रोपीन बनाना है, तो मेरा कीटोन का मैं रिडक्शंस करूंगा तो ही मुझे मिलेगा ना। तो मैंने कीटोन का रिडक्शंस किया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की वजह से। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H और H आ जाएगा, ठीक है। अभी ये मेरा अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मैंने डिहाइड्रेशन रिएक्शंस करवाया हुआ है, और समटाइम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टू बीटा एलिमिनेशंस भी हम उसको बोल रहे हैं। तो यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, सो देयर इज अ पाई बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड कार्बन, ओके, अल्फा बीटा, सो इट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोपीन। तो ये मेरा फर्स्ट कन्वर्जन्स था जो आपने अपने 12.15 में ये बताया हुआ है। अभी नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं वो है 12.16। अब देखिए ये यहाँ जो 12.16 की जो बात की हुई है, हम एक स्टेप बाय स्टेप उसको देखना चाहेंगे। देखिए क्या दिखा रहे हैं 12.16 में हमें क्या मिल रहा है। अब फिर से एक बार, बेंजोइक एसिड टू बेंजाल्डिहाइड मुझे बनाना है। क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड टू बेंजाल्डिहाइड। सो बेंजोइक एसिड में से हम कहां पे चले जाएंगे, बेंजोइल क्लोराइड में SOCl2 के साथ। हमें मालूम है ना ये दोनों गैसियस फॉर्म में मिल रहे थे। इट्स अ वन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, सो इट्स अ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोइक एसिड इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। और बाद में उसका मुझे रोसेनमूड रिडक्शन करना पड़ेगा, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट से हम करेंगे तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा और वो है बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट मुझे दिया गया है और वो है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। आप यहाँ पे देख रहे हैं इथेनॉल है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी अल्डोल कंडेंसेशन मुझे करना पड़ेगा। तो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए मुझे इथेनॉल में से इथेनॉल में तो आना पड़ेगा। देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो मैं 2 तरह से जा सकता हूँ ना, उसका PCC से भी ऑक्सीडेशन कर सकता हूँ। यहाँ पे बुक ने दिया हुआ है कॉपर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से डिहाइड्रोजनेशन में भी मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट इथेनॉल मिलेगा, और ये इथेनॉल का मैं अल्डोल कंडेंसेशन करवाऊंगा तो मुझे अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे मिल सकता है। देखिए नेक्स्ट मुझे क्या दिया गया है, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन मुझे दिया हुआ है, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन। देखिए यहाँ पे COCH3 ग्रुप और NO2 ग्रुप दोनों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आप पहले उसका फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कर दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 CH3 COCl, ठीक है। तो मुझे मालूम है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ये जो हम रिएक्शंस करेंगे HCl निकल जाएगा, एसीटोफिनोन है, और ये एसीटोफिनोन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब नाइट्रेशन कर दीजिए तो न्यू इनकमिंग NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल इज अट्रैक्टेड एट द मेटा पोजीशन एंड वी गेट अ प्रोडक्ट इज मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन। फिर मुझे यहाँ पे दिखाया गया है और वो है बेंजाल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, बेंजाल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। लेकिन यहाँ पे कुछ दिक्कत है ना, 2 स्टेप से वो ज्यादा चला गया है। अब देखिए 2 स्टेप से मैंने यहाँ पे ज्यादा स्टेप है वो मैंने दिखाए हुए हैं, तो अभी क्या करूंगा, अभी हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो कि इसमें 2 रास्ते हो सकते हैं। कई बार अब देखिए बेंजाल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन में मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ कि मेरा बेंजाल्डिहाइड है उसका मैंने ऑक्सीडेशन करके मैंने बेंजोइक एसिड में डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे बेंजोइक एसिड हो गया है। फिर मैंने यहाँ से थायोनाइल क्लोराइड लेके मैंने बेंजोइल क्लोराइड COCl में ले गया हूँ मैं यहाँ बेंजोइल, ये मेरा चलेगा नहीं अभी, लेकिन मैं दूसरा भी एक रास्ता आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बेंजोइल क्लोराइड। फिर उसका मैंने फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करके बेंजोफिनोन बनाया हुआ है।
लेकिन यहाँ पे एक और रास्ता भी है, बेंजोइक एसिड का एक और रास्ता भी यहाँ पे जा रहा है, और वो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से उसका रिएक्शंस करवाना पड़ेगा। तो वो, और फिर मुझे दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ड्राई डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट मेरा स्टेप है कैल्शियम कार्बोनेट का, दूसरा मेरा स्टेप है ड्राई डिस्टिलेशन। जैसे मैं ड्राई डिस्टिलेशन कराऊंगा तो मेरा जो प्रोडक्ट है, राइट, वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे बेंजोफिनोल पे चला जाएगा। तो ये भी एक रास्ता है। तो वो 2 स्टेप में हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारी बुक में दिया हुआ है तो वो तो मोर देन 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स में भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, हमें अभी दिया गया है ब्रोमोबेंजीन। क्या दिया गया है मुझे, यहाँ पे देखिए 6 नंबर का ब्रोमोबेंजीन टू 1-फिनाइल इथेनॉल है। तो मुझे सिंपल ब्रोमोबेंजीन में मैग्नीशियम को मिला के मुझे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना पड़ेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में एसिटाल्डिहाइड में करके दूसरा स्टेप है हाइड्रोलिसिस है, H3O+ से हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे 1-फिनाइल इथेनॉल यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, बराबर है। देखिए अभी नेक्स्ट मुझे दिया गया है, क्या है, बेंजाल्डिहाइड टू 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। बेंजाल्डिहाइड टू 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल बहुत बढ़िया है, हमें मालूम है। इसमें क्या होगा कि मुझे क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन करना पड़ेगा, ये मुझे मालूम है। क्रॉस आल्डोल में मुझे जाना पड़ेगा, तो क्रॉस आल्डोल के बाद में उसको फर्स्ट स्टेप में NaOH और दूसरे स्टेप में पानी निकल जाएगा। तो ये मालूम है ना आपको, ये सिनेमाल्डिहाइड है। क्या है, इसको हम सिनेमाल्डिहाइड बोल रहे हैं, और सिनेमाल्डिहाइड का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा, डबल बॉन्ड और CH सभी का करना पड़ेगा। इसलिए मुझे निकल हाइड्रोजन से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके मैं यहाँ पे 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल बना सकता हूँ। एक से बढ़िया यहाँ पे कन्वर्जन्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हुए हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है बेंजाल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। देखिए आपको क्या दिया गया है, आप देखिए पहले 8 नंबर में जो आपको दिया गया है वो आप फिर से एक बार देख लीजिए। आपको दिया गया है बेंजाल्डिहाइड टू फिनाइल, बेंजाल्डिहाइड टू फिनाइल एसिड, सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरे पास तो एक रास्ता यहाँ पे NaCN है, हा? मैं क्या करूंगा, सोडियम साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे क्या बनेगा, HCl। कितना pH था आपको मालूम था ना, pH 9 to 10 से मैं ये प्रोसेस कराऊंगा, तो मुझे ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन मुझे मिल जाएगा। फिर मैं उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो मुझे अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड यहाँ पे मिल सकता है। आपको मालूम है उसका दूसरा नाम है ना, मेंडेलिक एसिड है। क्या है, मेंडेलिक एसिड भी हम बोलते हैं। ये कायरल कार्बन है, देखिए आप, असिमेट्रिक कार्बन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का उसके पास प्रॉपर्टीज है, डेक्स्ट्रोलियो हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से बेंजाल्डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी मैंने दिखाया हुआ है। फिर मुझे यहाँ पे दिखाया गया है दूसरा बेंजोइक एसिड टू मेटानाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। क्या दिया गया है, बेंजोइक एसिड टू मेटानाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल मुझे दिया गया है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बेंजोइक एसिड में से मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मैं उसका रिएक्शंस करवाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल मिल रहा है, और जो बेंजाइल अल्कोहल मुझे यहाँ पे मिल रहा है, अब देखिए उसका यहाँ पे मैंने नाइट्रेशंस करवाया हुआ है, इसका मैंने नाइट्रेशंस करवाया हुआ है। अब देखिए, लेकिन इस तरह से हो नहीं सकता है, ये इसमें थोड़ी गलती है। मुझे पहले क्या करना पड़ेगा कि बेंजोइक एसिड में से मेरे को फर्स्ट प्रोसेस में मेरे को नाइट्रेशन करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से ये मैं सुझाव आपको दे रहा हूं, मैं होता तो मैं एग्जाम में इस तरह से यहां से आपको दिखा सकता हूं कि मेरे पास बेंजोइक एसिड है, फिर मैं उसका नाइट्रेशन करके मैं कहां पे चला जाऊंगा, COOH और NO2 पे चला जाऊंगा। लेकिन ये एक स्टेप में प्रोसेस नहीं है, देखिए आप। फिर मैं उसमें SOCl2 लगाऊंगा, थायोनाइल क्लोराइड का मैं प्रोसेस करूंगा, यानी यहाँ से SO2 और HCl निकल जाएगा, एंड आई गेट अ प्रोडक्ट इज COCl एंड NO2। बाद में मैं उसका सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन करवाऊंगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड और एसिडिक प्रोसेस में जैसे मैं इसका रिएक्शंस कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH2OH और ये NO2। तो इस कुछ मिल सकता है।
तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जन्स हमने यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं। अभी जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हमने ये प्रोसेस समझ भी ली है। जो भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस होगा तो मैं आपको अपनी तरह से फास्ट ट्रैक में लेके चला जाऊंगा, क्योंकि हमने थियोरी में उसको ज्यादा उसके बात कर ली है। उसको ये समझा रहे हैं कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्या होता है? तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें हम एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप इसमें दाखिल करते हैं, इसमें एंटर करते हैं, राइट। तो हम उसको क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन बोलते हैं। यहाँ पे जैसे इथेनॉल है और एसिटाइल क्लोराइड के बीच में पिरिडीन की प्रेजेंस में जो प्रोसेस हो रही है, तो हम इथाइल एसीटेट बना सकते हैं। उस तरह से फिनोल का भी एसिटाइलेशन कर सकते हैं, अल्कोहल भी कर सकते हैं, फ्यूचर में हम एनिलीन का भी करेंगे। केनीज़ारो रिएक्शंस में उसका जो फोटोग्राफ्स है वो आपको दे दूंगा, यानी आपको पता चल जाएगा। केनीज़ारो तो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए और आल्डिहाइड होने चाहिए, और उसका KOH और NaOH 50% होगा तो एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन हो सकता है। फिर मुझे क्रॉस आल्डोल की बात यहाँ पे समझाई हुई है, तो क्रॉस आल्डोल हमने पता ही है। फिर बाद में यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन की भी बात यहाँ पे हमने समझाई हुई है। तो ये तो आपको पता चल गया है। अब हम आज के जो लास्ट क्वेश्चन है, राइट, वो जो है 17th नंबर का हमारा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे हमें समझाया गया है, दिखाया गया है कि हम किस तरह से ये क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। हमें यहाँ पे इसलिए दिखाया गया 12.17 का क्वेश्चन क्या है, आप देखिए। कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट और प्रोडक्ट्स। यहाँ कुछ मिसिंग है, जैसे कैसा मिसिंग होगा? 2 देंगे तो ये मिसिंग होगा, या ये 2 देंगे तो ये मिसिंग होगा, ये देंगे तो ये मिसिंग होगा, कुछ ऐसा तरह का है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये दोनों दिया हुआ था, इथाइल बेंजोएट दिया हुआ है और KMnO4 KOH के साथ हम जैसे उसका रिएक्शन कराएंगे। हमें मालूम है दे आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्टिल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन, सो देयर इज अ बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बेंजोइक, लेकिन ये जो KOH है ना वो अल्कलाइन है, तो बेंजोइक एसिड के साथ जुड़ के वो उसका पोटेशियम बेंजोएट जो है वो सॉल्ट यहाँ पे बना सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो दिखाना था वो क्या दिखाना था? तो यही पोर्शंस है, ये आपको ढूंढना था। दूसरे में भी यही बताया हुआ है कि इसने इतना दिया हुआ है। अब देखिए इसको कंप्लीट कीजिए। हमें मालूम है SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड ऑलवेज सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ Cl। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? तो हमें थैलोइल क्लोराइड का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकता है। तीसरा हमें यहाँ पे जो दिखाया गया है वो भी आप देखिए। तीसरा में दिखाया गया है C6H5CHO और फिर उसका सेमी कार्बेजाइड के साथ हमें रिएक्शंस करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है ना सेमी कार्बेजाइड्स में यहाँ से H2 निकलेगा या यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से O निकलेगा, पानी निकल गया है और बेंजाल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन मुझे यहाँ पे कुछ मिल सकता है। फिर मुझे यहाँ पे दिखाया गया है बेंजीन टू बेंजोइल क्लोराइड, और मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाया गया, ये मुझे मेरे पास ये है, तो यह क्या मुझे करना पड़ेगा? तो मुझे बेंजोफिनोन और बेंजीन में से मुझे बेंजोइलेशन ही करना पड़ेगा विद इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड एंड एनहाइड्रस AlCl3 के साथ मैं जैसे ही उसकी प्रोसेस कराऊंगा तो वो मुझे यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट वन मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑक्सो, ठीक है। हमें पहले क्या दिया हुआ है? डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और CHO, ठीक है, ये दिया हुआ है मुझे। 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड मुझे दिया हुआ है। तो मुझे मालूम है टॉलेंस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड नॉट इन कीटोन। तो कीटोन को कुछ भी आपको करना नहीं है, CHO को COO में डाल दो। तो 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन और एनाइन हमें मिल सकता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें दूसरा कुछ ऐसा भी कंपाउंड दिया हुआ है 2-फॉर्माइल बेंजोइक एसिड यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, और उसका सोडियम साइनेट हाइड्रोक्लोराइड। सोडियम साइनेट हमें मालूम है CHO पे ही प्रोसेस करेगा, यहाँ पे O के साथ, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन साइनेट बनाएंगे ना, तो ये जो दोनों की वजह से बन रहेला हाइड्रोजन साइनेट, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करके O के पास H और CN यहाँ पे चला जाएगा, तो मुझे एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी 2,1 हाइड्रोक्सी साइनोमिथाइल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस है
तो हमें 7th नंबर में यहाँ पे C6H5CHO benzaldehyde. But we know that this benzaldehyde does not having a alpha hydrogen, and propanol definitely having alpha hydrogen. So there is a cross aldol between benzaldehyde and propanol. So it's a one type of Clemmensen-Smith reductions 2, and we get a product is 2-methyl 3-phenyl prop 2 enol. नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे जो 8th नंबर में दिया गया है वो है इथाइल 3-ऑक्सो-ब्यूटेनॉइड यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर उसको सोडियम बोरोहाइड्रेट से। देखिए यहाँ पे दो ग्रुप है, कीटोन है और एस्टर है, लेकिन हमें मालूम है सोडियम बोरोहाइड्रेट ओनली रिड्यूस कीटो ग्रुप। वो क्या करेगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट है ओनली कीटो ग्रुप, ओनली कीटो ग्रुप इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये यहां पे ही प्रोसेस करेगा, यहां पे नहीं करेगा। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, इथाइल 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइड यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट वन हमें यहाँ पे दिया गया है साइक्लो हेक्सेनॉल और CrO3। हमें मालूम है सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल बनाएंगे। बहुत बढ़िया यहाँ पे दिया गया है 10th नंबर में, जिससे हमें यहाँ पे दिया गया है मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन है। हमें मालूम है उसका जो B2H6 या उसका हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो मुझे फर्स्ट में साइक्लोहेक्साइल ट्राइबोरेट मिलेगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन करके मुझे साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल मिल जाएगा, फिर उसका PC3 के साथ रिएक्शंस करके मैं इसको साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। और आज का लास्ट हम देख रहे हैं वो यहाँ पे दिया गया है कि ये डबल बॉन्ड C यहाँ पे दिया गया है, मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉन हमें यहाँ पे बनाना है। मैंने आपको एक ट्रिक दी थी ओजोनोलिसिस में, तो क्या आपको क्या करना है, ये दोनों आप बाजू बाजू में रख दिए, यानी ये डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ से क्या निकाल दीजिए, O2 निकाल के उसको ज्वाइन कर दीजिए, तो साइक्लोहेक्सिलिडीन साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशंस होगा वो 12.18 से हम शुरू करके बाद में हम एग्जाम्पलर तक हमारी जर्नी है वो चालू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।